So today's topic, आज का जो सवाल है और आज का जवाब और आज का विषय हम बात करेंगे और सुनेंगे मेलोडियस वॉइस करण चुग. Yes, he is an amazing singer. So here I'm gonna add Karan. Yes. Hi, Hey, Nishiji, how are you? hey Karan, I'm good, I'm good. So he is my guest today, Karan Chug. Yes, Karan. So Yeah, I'm not gonna waste time. So start something about yourself. So about very few lines about your journey and how you become a singer. okay. So to start from my childhood, I always had a natural inclination for singing, and I even went for a few competitions, and I even won them, but we never took it up seriously then. And then at Okay. the age of around say 18, that is when Mhm. I took it up seriously, and there was this burning fire in me to start learning Hindustani classical Sangeet. So that's what Wow. I started doing. I learned for around 7 years, and I also started putting out covers on YouTube, say around 3 years ago. And I used to put out normal covers and stuff. And initially, it was a big struggle because I remember, not even getting 100 views, or it would Mhm. take days to get one new subscriber. But eventually, I started experimenting with a lot of content. And Mhm. one day I thought, Acha, I want to cover this song called Zara Zara. But how Okay. can I separate myself from the competition that is there? So I said, let me try and sing in Tamil. Now I have no relation with Oh, Tamil, but I said, okay. chalo, let's give it a shot. And I sang Zara Zara and Vasikara, the Hindi and Tamil versions of the song. Mhm. And that video worked, and it's almost going to hit 1 million views now. And I Amazing. started experimenting with new kinds of videos. I started making a lot of regional content. I started making Mhm. celebrity mashups. So say a Jagjit Singh mashup, say Wow. based on stars. So their Mhm. most famous songs. So I started experimenting, and that's how I got noticed. Yeah. Amazing, amazing. That's, what psychologist, as I am a psychologist, and what attract me that the song makes you mindful. So today's our topic is music and mindfulness. Right. Whenever you feel stuck, whenever you feel happy, whatever your mood, but the Hmm. music is always there, Yeah, right? absolutely. No, even if we are happy or we are sad, music is Mhm. with us. Even if you're sad, you're Yes, listening to music. If you're happy, you're partying and you're dancing to music. So I think music is just a companion for all of us there. absolutely. So let's start with your melodious voice. Sure, definitely. So there's this old song. It's Badan Pe Mhm. Sitare. I can sing that for you all. Great. हम ही चुप न होंगे तू ऐ दिलरुबा किसे देख कर हाय शर्माओगी न देखोगी फिर तुम कभी आईना हमारे बिना रोज घबराओगी बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो चैन आ जाए जरा पास आओ तो चैन आ जाए. Yeah. Wow, amazing, amazing. Thank you. It's beautiful. So, I was feeling like I'm with celebrity. So No. it's a great feeling. It's great feeling, and Karan, what I feel that whatever as you share your story, Yeah. um, जरूर हम हिंदी में बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू ऑल. इट्स लेट्स टॉक विद निशी शो और हमारे साथ है करण चुग जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं जैसा कि आप सब सुन रहे हैं और जरूर आप जाइए इनके यूट्यूब चैनल पे. सो करण प्लीज टेल अबाउट योर यूट्यूब चैनल नेम एंड Yeah. समथिंग लाइक दैट. Yeah. You all can just search for Karan Chug and you all will see my channel. Yeah. या सो आप लोग जाइए और देखिए, सुनिए और जरूर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. सो टुडेज
as our topic is mindfulness, so how you feel as you know shared, जैसा कि आपने पहले शेयर किया कि जिस तरह से आप आगे आए इस म्यूजिक के लिए, हाँ so somehow you feel कि कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे आपके लाइफ में when you connect with music, you know, as when I deal with the clients, and I was a dietitian, now I switched हम्म last 10 years back that हम्म as a psychologist, so I feel also many things change in a life. So how do you feel when, you know, because as a celebrity, as you are singing, and sometimes if you're not feeling good but you have to sing a song which is very, you know, jolly mood or something like that, so कैसे मैनेज करते हैं अगर आपका मूड अच्छा ना हो लेकिन आपको एक मस्ती वाला एकदम धूम वाला सॉन्ग गाना हो, तो किस हम्म तरह से अपने मूड को ठीक करते हैं? right. Firstly, Nishiji, you're very kind. You're calling me a celebrity, but I'm not a celebrity. I'm like everyone else. And definitely, you know, music मेरे लिए ये है कि समझिए, चाहे लोग मेरी म्यूजिक सुने ना सुने, I will still be with music. I actually feel like music is my companion. चाहे कोई हो ना हो, I will always have music with me. And वो एक साथ बना रहता है. But like you said, जब भी हम लोग गाना गाते हैं, I have to put myself in that situation. कि ये जो मैं गा रहा हूँ, actually I'm feeling that. And कितने बार I've been doing a lot of sad songs, breakup songs. I'm like, अरे ये तो इतना मुझे experience नहीं है इस बात का, but अभी इसको feel करके कैसे गाऊं? But general mood एक गाने का पकड़ते हैं, समझिए it's a sad song. So if there's some sad incident in my life, I go back to that and I think of that while recording the song. The same way if I'm happy, you know, if it's a happy, fun song, so I'll think I'm partying with my friends or वो mindset से I sing the song, yeah. तो यहाँ एक चीज तो जाहिर हो गई कि वो सैड सॉन्ग गाने के लिए दिल टूटना जरूरी नहीं है। हाँ जरूरी नहीं है, बस ऊपर नीचे तो एक्सपीरियंसेस होते ही है and you can, you know, pull Yeah, exactly. So inspiration from that. I was so scared कि ऐसा बहुत बार मैंने सुना है कि अगर you know I'm not gonna tell the name but जो ऐसे सिंगर हैं जो दर्द भरे गाने गाते हैं तो हाँ उनका दिल टूटना बहुत जरूरी है, उनको प्यार होना बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। Yeah, that's good. That's good. So, Karan, what do you do, you know, apart from this singing, as in your life that I think like your study or something like that? तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कभी आप जब फंसते हैं तो ये म्यूजिक आपको बहुत हेल्प करती है? करता है definitely. In fact, recently I have started a new venture. It's called Blazers and Boxers. It's a separate YouTube channel that I have where we Yeah. have a lot of podcasts. And you know, Okay. like your wonderful initiative, we also invite guests that are very inspiring, and we bring those stories to the audience. So we've started this recently. तो उसमें काफी time जाता है. But like you said, you know, बुरा time आता है, sad होते हैं, तो you know, I definitely resort to music, and it definitely changes my mood. Exactly. So how do you feel that your mindfulness, like हम जैसा मेरा मानना है कि being a psychologist or why psychologist, being a human being, हम भी कहीं ना कहीं स्टक होते हैं, और मेरे से कई बार ये इस तरह के लाइव शो में ही लोगों ने पूछ दिया है कि मैम आप कभी सैड होती हैं तो क्या करती हैं, यू नो। तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गॉड दैट कि आप Yeah. अगर कहीं भी जाते हैं, जैसे हम सोचते हैं ना कि नहीं कोई चाहिए, कोई इंसान चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जिससे आप शेयर कर सकते हो, सो on that moment I feel that God is one that you can connect very easily, and Yeah. that is a permanent connection. So believe in God, and you know, transparent yourself whatever you are feeling, so let it be. ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है, as a psychologist people come to me and client come to me, and if I'm not feeling good on that moment I have to be presentable, right? Yeah. But Yeah. somehow when you are, you know, time and again you are feeling the same and your same stress, so you have to work upon that. So in those moments God is connectivity, and God is a, you know, well wisher with me, who is always with me, you know। कई बार दुख में लोग कहते हैं नहीं नहीं भगवान तो बुरों का साथ देते हैं, हमारा साथ नहीं देते। तो what is your perception that if you are doing a good, you know, जैसा अभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, म्यूजिक है, ये है वो, you know, लेकिन जब हम ऊंचाई पे जाते हैं ना तो कई बार कितने झटके लगते हैं वो लोगों को पता नहीं होता, कितने स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ये लोग देखते हैं कि ठीक है निशी इज अ साइकोलॉजिस्ट, शी इज डूइंग वेरी गुड, एज करण इज अ सिंगर, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष आपने किए, उस संघर्ष में जो पेन की फीलिंग होती है, ऑन दैट मोमेंट हाउ यू फील योर माइंडफुलनेस एंड व्हाट इज योर वेपन? So very interesting, you know what you've said. But मेरा इस पे ओपिनियन क्या है कि बहुत लोग एक्चुअली डरते हैं of being sad. क्या हम या लोग को समझने की जरूरत है is that
Are you scared of being happy? No. So Hmm. happiness, sadness are a part of who we are. So if you're feeling sad on a certain day, it's fine. Accept sadness and say it's okay, Yeah. and this too shall pass, and this sadness is temporary. I will get over my problems. So one thing is, once you accept your sadness, that in itself is a happy feeling. So that is what Right. I believe. And ups and downs continuously आने ही है. And people, like you said, दूसरा एक बड़ा जो इस पे blame जाता है social media. Because social media पे क्या हो रहा है, especially Instagram वगैरह आप देखेंगी तो हम लोग सब अभी जैसे मैं भी बैठा हूँ तो मैं full अच्छे कपड़े पहन के ready होके बैठा हूँ. I'm Yeah. projecting my best self on Instagram. Yes. But I may not look like this, रात के या सुबह के 6 बजे I may not look like this. तो इंस्टाग्राम पे आई एम ओनली शेयरिंग माय अचीवमेंट्स का, यार ये गाने पे 1 मिलियन व्यूज हो गए, ये गाने पे ये हो गया. बट मे बी देयर इज अ सॉन्ग जिस पे सिर्फ 10,000 व्यूज आए हैं, वो दैट आई विल नॉट शेयर. सो उस वजह से क्या हो रहा है, लोगों के माइंड में क्या हो रहा है कि अरे वो पर्सन तो सक्सीड कर रहा है, मेरी लाइफ खराब है. तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग, and when we start Yeah. comparing, we start feeling worse, and eventually it can Hmm. get worse and worse. So वही है, we need to understand that Instagram and social media is not reality. People are projecting their best selves. Just enjoy it, but Yes. don't take it too seriously. So these Yes, are my thoughts. Yeah. that's amazing. That's amazing. यही मैं लोगों को बताना चाहती हूँ ना, एब्सोल्युटली करेक्ट जो आंसर मुझे चाहिए था आपसे बिल्कुल वही मिला. मैं आपको बताती हूँ व्हाई आई कॉल यू सेलिब्रिटी. सेलिब्रिटी कौन है जिसका बेस्ट पार्ट हम देखते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता उसके स्ट्रगल के बारे में कि उसकी इतनी पिक्चर्स फ्लॉप हुई, उसको इतना कुछ सुनाया गया. इवन हम जैसे लोग भी बहुत कुछ सुना देते हैं. एक मूवी जब हम देखते हैं 2 आवर्स या 3 आवर्स की, या फिर सीरीज ही ले लीजिए जो आजकल हम देखते हैं, तो हम कह देते हैं यार ये बेकार है. हमारा ये कमेंट बस 2 मिनट का या 2 सेकंड का होता है, लेकिन उसको करने के लिए कितने एफर्ट्स लोग लगाते हैं. So on Instagram or any social media, you should take as a पॉजिटिव मैनर. और जहां तक पिक्चर्स और लाइफ के सवाल है, मैं आपको बताती हूँ कई सारे फिल्टर्स हैं इन ऑन इंस्टाग्राम दैट वी आर एवरीवन जो आप पोस्ट करते हो वो फिल्टर करके डालते हैं. तो आप उस पर कई बार मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास जो बच्चे आते हैं खास करके 11th-12th के, कि मतलब एक बच्ची है, उसने ये कहा कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ. और आई एम टेलिंग यू कि अगर मैं मतलब वी कांट शेयर, ऑल थिंग्स आर वेरी कॉन्फिडेंशियल. और अगर आप मुझसे पूछें तो शी इज डैम ब्यूटीफुल. वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको ऐसा क्यों लग रहा है? बिकॉज वो इंस्टाग्राम या कहीं पे भी अगर पोस्ट करती है तो शी इज नॉट यूजिंग दैट फिल्टर. और उसके जितने भी पीयर ग्रुप्स है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो फिल्टर करके डालते हैं. तो शी इज लाइक मैं, और फिल्टर में तो आजकल न जाने क्या क्या चीजें होती हैं. तो मैं लोगों को, और खास करके टीन एजर्स या जो मॉम एंड डैड जो भी देख रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ अपने बच्चे से जरूर बात कीजिए, क्योंकि उनके अंदर क्या चल रहा है, दे फील इनफेरिटी, और इस वजह से उनके स्टडी पे, उनके करियर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो डोंट टेक दीज सोशल मीडिया एज अ कंपैरिजन. सेकेंडली, जो मैरिड कपल्स होते हैं उनका भी है कि अगर किसी ने पोस्ट कर दिया कि भाई हम गोवा में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम यहाँ चले गए, वहां चले गए, फॉरेन कंट्रीज चले गए, उस पिक्चर को देख करके डोंट कंपेयर योर मैरिड लाइफ, योर रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप इज नॉट ऑल अबाउट आउटिंग एंड पोस्टिंग द पिक्चर्स. आपको पता नहीं है, शायद उसके पीछे का सीन कुछ और होता है. So we should understand. Yeah. Yeah, no, So I absolutely agree. And but ये भी है कि I should point out कि मैंने अगर negative side of social media बताया है, तो I should point out the positive side also. एक तो है कि we can have such wonderful conversations. We can, अभी COVID के time में we can interact with so many people. So ये एक अच्छा side है. And दूसरा ये भी side है that for me as a singer, initially when I started out, मेरे mind में ये था कि अच्छा मुझे famous होना है या अगर अच्छे पैसे कमाने हैं तो बॉलीवुड में ही गाना पड़ेगा. That was my only thought. But later on, I realized that, okay, achha, this is a parallel way to grow. And, I saw a lot of independent artists seeing a lot of success with their original music. And that is when, I realized, ki, fine, I don't need to go and beg for work from people, I can create my own work. I can do what I want to do. So that's when my vision changed. And, that's when I decided that I also want to do original music. I've been putting out a lot of covers and mashups to build up my audience. But my eventually my goal is to put out original songs that reflect my thinking, my philosophy. And, maybe with those songs, if I can help out my audience, even in a small way, then my life is worthwhile.
Absolutely. So even I was not that this much active on the social media. मुझे कुछ नहीं हम्म, पता होता था. ओके, एक अकाउंट था, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे है, वो पड़ा हुआ है. हाँ, बट इन दिस लास्ट 6 मंथ आई वाज लाइक पीपल वाज कहते हैं कि एक फेमस हो जाना. और मैं आपको हम्म, बताती हूँ, इंस्टाग्राम ने और इस सोशल मीडिया ने मुझे बहुत कुछ दिया. इवन आई एम अर्निंग फ्रॉम दिस सोशल मीडिया बिकॉज एब्सोल्युटली, आई एम कनेक्टिंग टू मेनी कंट्रीज. बिकॉज मेरा हम्म, सब्जेक्ट ही ऐसे है. और इस कोविड की वजह से तो मैं आपको क्या बताऊं, मतलब माई माई नंबर इज ऑल्सो इन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो एक ओके, हेल्पलाइन में था. तो लास्ट ओके, 3 मंथ जो था बिगिनिंग का कोविड का, वो तो आई वॉज सो बिजी. बिजी, So it doesn't matter that how much I'm earning money, but I was great, doing with people I'm helping, and a whole day on the phone we are talking. So it gives me so relief. And हम्म, why I'm doing all these things, because when I was struggling as a psychologist counselor, मुझे पता नहीं होता अच्छा OCD क्या होता है, ये क्या होता है, हम्म, वो क्या होता है, behavioral therapist क्या होता है. Because every time you are not able to go to Google, and Google is always not right. Okay. या, So because of this I am prevailing this mental health awareness, क्योंकि मुझे ये चीजें नहीं मिली. तो कई बार आपके जो bad experiences होते हैं, that also improves, हम्म, strengthen. सो हम्म, ये बहुत जरूरी है कि आप खुल के बात कीजिए. एज यू आर अ सिंगर, तो मैं आपको इसलिए बताती हूँ. और मेरा इस ये शो करने का पर्पस एक सिंगर के साथ ये है कि हम्म, ये सिंगिंग जो है, खास करके सिंगिंग, एक्टिंग, ये सारी चीजें बहुत लोगों को फेम की तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट? हम्म, when you are getting attracted towards fame but you are not getting fame. ऐसे हम्म, कई बच्चे हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी उड़ान ऊंची देखते हैं, लेकिन उनसे हम्म, ये नहीं पता है कि पहली सीढ़ी क्या है. सो या, इफ समवन वांट टू सिंगर, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? कि अगर 12th में कोई बच्चा है, वो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन उसके हम्म, पेरेंट्स उसको मना कर रहे हैं, बट साइड बाय साइड मेरा कहना है कि आप अपने पैशन को साथ में रखिए, आप अपना पढ़ाई भी जारी रखें. तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किस तरह की दिक्कतें आती हैं और कैसे कोप अप करना चाहिए? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड कई एक्चुअली डीएम्स भी मुझे आते हैं एंड पीपल आस्क मी फॉर एडवाइस, बट कई बार आई सी पीपल पुटिंग आउट म्यूजिक और वो बेसुरे हम्म. होते हैं. तो हम्म. अगर आपका बेसिक टैलेंट ही इन प्लेस नहीं है, आप बेसुरा गा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको हेट ही मिलेगा ऑनलाइन. तो फर्स्ट माय हम्म. फर्स्ट थिंग इज आप अच्छे गुरु से सीखिए. फिर मैं अभी हम्म. 7 साल से पंडित भवदीप जयपुर वाले जी से सीख रहा हूँ. और अच्छी तालीम मिलती है तो ही आप अच्छा गा पाते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज हम्म. गेट गुड ट्रेनिंग. अच्छे से हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखे, या इफ यू लाइक वेस्टर्न वेस्टर्न सीखे, बट सीखिए. देन यू कम ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. उसके बाद हम्म. परसिस्टेंस इज की. अभी मैं भी इतने सालों से कर रहा हूँ तो जाके आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ सक्सेस. बट हम्म. बहुत लोग हैं 6 महीने चालू करते हैं, दे जस्ट गिव अप, दे विल लीव इट. तो 6 महीने अरे नहीं आ रहे व्यूज, नहीं आ रहे. ऑफ कोर्स नहीं आएंगे क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं. मुझे भी लाइक आई हम्म. सेड 50 व्यूज 100 व्यूज मुश्किल से आते थे. वो भी फैमिली फ्रेंड्स को फोर्स करके कि उनको तो ऑप्शन है नहीं, तो वो बेचारे देख रहे, लाइक कर रहे, शेयर कर रहे. तो दैट हम्म. इज द प्रोसेस. अगर आपको हाँ. काम नहीं मिल रहा है, व्यूज नहीं मिल रहा है, डोंट फील सैड. इट्स द प्रोसेस. हम्म. It's यस. happening with everyone. So accept that, be persistent, keep posting content, and keep experimenting. Because हाँ. if you're doing something that everyone is doing, then why will anyone watch you? If I'm making a cover of Zara Zara, why will anyone हम्म. listen to my cover of Zara Zara when they can listen to the original singer? एब्सोल्युटली. So only if I make a cover which is Hindi and Tamil, I've done something new. So if But someone wants, that's a wonderful. I interrupt you because yeah, I heard your जरा जरा, it's amazing. क्योंकि उसका जो मैशअप है ना, जी, मैंने इसलिए अपने स्टोरी पे भी डाला था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड आई वाज लाइक, मुझे याद नहीं है, इन कॉलेज आई थिंक, जब मैंने ये मूवी देखी थी. जी, तो जी, सो आई वाज रिकॉलिंग माई सेल्फ. एंड बहुत ही उसमें जो आपने मैशअप किया, और खास करके जो शंकर महादेवन का और इस तरह के जो साउथ के जो सिंगर है उसके बिल्कुल. साथ मैशअप करना, इट्स नॉट इजी टास्क, Right. Right. Yeah, इट्स definitely, रियली because I used to get so nervous before putting out a cover in Tamil, because गुड. I've received a lot of love from the Tamil audience, but I didn't want to disrespect them in any way by mispronouncing the words. So I would या. reach out to Tamilian friends and practice one word. फिर भी थोड़ा बहुत भूल चूक तो हो ही जाती है, and they've been kind enough to forgive me for that. But बहुत ज्यादा प्यार मिला है साउथ से.
That's good. That's good. That's amazing. So, how do you feel, Karan, when you move and when you go in party and when you recognize, ऐसा भी होता है कई बार लोग कि भीड़ में अच्छा जब बहुत ही छोटे लेवल से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन जब हम एक लेवल तक आ जाते हैं, एज यू सेड कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, अभी तो Right. बहुत आगे जाना है, अभी तो बिल्कुल कहानी शुरू हुई है. सो बिल्कुल इसके लिए ऑब्वियसली क्योंकि जैसे मेरा भी मानना है, क्योंकि इन दिस एज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब मैं भी जाती हूँ आई ऑल्सो फील रिकॉग्नाइज. सो हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू मैनेज हैंडल योर द एग्जिस्टेंस when Right. people recognize you? I mean, it's just a beautiful feeling, and Mhm. बहुत लोग ये बोलते हैं कि some people start behaving like a celebrity as a star, but I genuinely feel like I don't even have fans. I feel like they are my supporters. They are like my family, because Mhm. it's family who supports you and helps you grow. So these are Mhm. supporters that listen to my music and they help me grow. They share my content. They are my family, and I genuinely love all of them. So it feels amazing, and every time someone comes and talks to me or says something nice to me, I'm very very happy. So yeah. Such a special feeling, right? Yeah, absolutely, and वही एक moment में, जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि what is your biggest achievement. Sometimes people say कि अरे मेरा ये million views हो गई, ये हो गया, वो हो गया, but Hmm. that has no value because it's just a number, but जब भी Hmm. messages आते हैं कि जब भी मैं depressed होती हूँ, मैं आपके गाने सुनती हूँ, या फिर there's this message that I got कि I started listening to Hindi music because of you. ऐसे टाइप के जो Wow. मैसेजेस आते हैं, they stay with you even for years. So that is what Yeah. I value the most. Yeah. Yeah, that's amazing. That's amazing. So, what is your plan? So Not my plan, specific, means generally. yeah, my future plans definitely, my energies are focused on my two YouTube channels now. So Karan Mhm. Chuk channel पे, like I said, I am still building up my audience और थोड़ा build up Mhm. करना है, और उसके बाद I plan to put out original music, my own Mhm. songs, खुद के lyrics, whatever I think वो lyrics में डाल के I'll put those songs out. And उसके अलावा जो Blazers and Boxers YouTube channel है, so podcasting as a field is very new in India, Mhm. and my focus is on Hindi podcasts because it's still very new, and I think that this can blow up after 2-3 years. So these are my goals, and of course live shows तो होते ही हैं कि एक साल बंद हुआ था सब कुछ because of COVID, but that is Yeah. also coming back to normal. तो लाइव Now शोज हैं, everything is. ब्रांड डील्स होते रहते हैं, उसके अलावा ऑफ Mhm. कोर्स काम यूट्यूब पे तो चालू ही है. So these are the plans. Yes. That's great. That's great. Now Basically, if you everything give is me on. permission, I'd just like to say hi to everyone. Thank you Sure, everyone for sure, joining the live. I am sure. seeing Som Gupta, Bajirao Shinde, Yeah. Drishti, hi, Nikki, hi, Singer Arpita, hi, Sonia, hi, Isha, hi, Rahul, hi, Ricky, hi. Thank you so much for joining in the live. It's actually my first live, and I'm so happy to be interacting with you and all of them. Okay, so even I'm not gonna miss to say hello everyone. It's Let's Talk with Nishi show. और आपको कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी गम ही हमसे शेयर करें, because we are a psychologist. आप हमसे अपनी खुशियां भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम अपनी खुशी को भी मैनेज नहीं कर पाते हैं. So I am here to manage your emotional health, your mental health. So you can DM me also about anything. You can share. आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, DM me. और ये सब जो है ना करण, ये हमारे एसेट हैं, यही हमारे खजाने हैं, ये जो लोग हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हैं तो हम हैं, Absolutely. तो इट्स अमेजिंग. और एक और बात पूछनी थी कि एज राइजिंग स्टार आई कैन से कि जो डीएम आपके आते होंगे या फिर जो फीमेल ग्रुप हैं, उनका क्या होता है रिएक्शन और आपका जवाब क्या होता है? इफ सम वियर्ड मैसेज यू सी, लाइक रोमांटिक मैसेजेस, सो व्हाट योर रिस्पॉन्ड? तो ऐसे थोड़े बहुत डीएम्स तो आते हैं, बट माय फोकस इज एंटायरली ऑन माय करियर, स्पेशली दिस ईयर. तो अभी वहां मेरे एनर्जीज नहीं है. अभी थोड़ा ऐसे हॉट साइडेड विजन है कि बस अभी करियर पे ग्रो करना है, एंड देन आई कैन मे बी गिव मोर टाइम टू माय पर्सनल लाइफ. सो एटलीस्ट दिस ईयर माय फोकस इज कंप्लीटली ऑन माय करियर. तो दैट्स वैसे ग्रेट. डीएम्स थोड़े बहुत व्हाई? आते हैं. इनफैक्ट लाइक यू या. सेड,
a lot of people also DM me thinking that कि मैं उनके बड़े भाई जैसा हूँ, and they come and talk about their life problems also. So That's वो good. भी कभी-कभी इतना अच्छा लगता है कि people can trust me that way. Yes, that's amazing. Why I ask this question, because when you start your journey and when you sings well, and because this is very, like attractive journey or attractive job, I can say that singing or acting, तो इस modeling even, तो इन सब में क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा जब अच्छा कर रहे होते हैं तो appreciation तो मिलती है, लेकिन साथ में एक distraction भी होता है. In this moment we need to be understand that what is right, what is wrong, even though you should understand that how you survive in this community, because you need to focus and you need to sharpen your skills. As you said that you are practicing, आपका रियाज चल रहा है, सब चल रहा है. So in this moment कई बार होता है लोग भटक जाते हैं और ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ये सवाल, यहाँ जो भी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ वो इन लोगों के लिए भी जो सुन रहे हैं, क्योंकि जब सफलता मिलती है तो सफलता को भी मैनेज करने के लिए, क्योंकि एज अ फीमेल I also feel many things which distract you when you gone through a good success and when you're doing good in your job, so don't distract. As Karan said very nicely कि पहले आपका जो फोकस होता है आपके गोल पे होता है, बाद में आपकी पर्सनल लाइफ होती है. और पर्सनल लाइफ में if somebody likes you, as you said कि अगर इस तरह से मैसेजेस आते हैं तो उसमें इतने अच्छे मैसेजेस भी होते हैं जो आपके दिल को टच करते हैं. So don't distract yourself when you're doing good, क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे पास रोने और दुख होने के सिवाय कुछ होता नहीं. लेकिन जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो there are many distraction, so you should handle those distraction and don't feel bad or don't feel alone. And because क्या होता है कि जो लोग मैसेज कर रहे हैं, they are messaging you, they are their own mental health, but you are here for educate people, for your skills, everything is there, because जब आप सक्सेस होते हो तो लोग आपके पास आते ही आते हैं, so this is very important. And If I may second, add, sorry, you can complete. no, secondly, I'm asking that what is your family like issues, like when you choose this field, किसी ने आपको रोका कि नहीं म्यूजिक नहीं कुछ और? क्योंकि म्यूजिक और जो खास करके ये गेम्स होते हैं, क्योंकि मेरे पास, why I'm asking this question, because at school I'm a career counselor also, तो बच्चे आते हैं कि मैम मुझे तो म्यूजिक करना है बट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, अगर मुझे क्रिकेट में जाना कुछ, तो इस तरह से कुछ दिक्कतें आई क्या? जी, before answering this question, I'd just like to say something. आपने जो सक्सेस की बात की, like जब भी आप थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग like you said बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन देना चालू करते हैं. और ऑफ कोर्स हेट भी, तो सोशल मीडिया है तो हेट तो आना ही है. तो हेट को तो बेस्ट थिंग इज कि आप इग्नोर करो. बट कभी-कभी ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, प्यार से आते हैं, दे रूट फ्रॉम लव, बट ऐसे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स आ जाते हैं दैट कैन मेस विद योर हेड. जैसे कमेंट्स आएंगे कि आप तो अरिजीत सिंह से बेटर गाते हैं, ऐसे कमेंट्स. तो आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट कि इनका इतना प्यार है कि वो ये कह रहे हैं, बट अगर मैंने वो सर में ले लिया तो आई विल फील कि आई डोंट नीड टू लर्न मोर, आई डोंट नीड टू डू माय रियाज. तो मैं ना बहुत पॉजिटिव ना बैड क्रिटिसिज्म दोनों को सीरियसली नहीं लेता हूँ. किसका ओपिनियन, अगर मेरे फैमिली का ओपिनियन है, मेरे गुरुजी का ओपिनियन है, अगर वो कह रहे हैं अच्छा गाया तो ठीक है, अगर बुरा गाया तो ठीक है, मैं इस पे वर्क करूंगा. तो दोनों को ही मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ. एंड अगर ग्राउंडेड नहीं रहे तो आपका करियर उधर ही खत्म है. तो हाँ, तो वो है. एंड कमिंग टू माय फैमिली, आई एम ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन अ वंडरफुल फैमिली. हमेशा ही सपोर्ट रहा है. इनफैक्ट वी वर्क एज अ टीम. तो क्योंकि बिजनेस फैमिली है तो हम लोग के वैसे बिजनेस रिलेटेड भी स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स होती है, तो वैसे यूट्यूब के लिए भी स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स होती है कि अच्छा ये ऐसा है तो इसका ऐसे प्लानिंग करके ये वाला वीडियो रिलीज करो, फिर ये वीडियो डालेंगे. तो इट्स अ टीम एफर्ट एंड उनके बदौलत ही आई एम व्हाटएवर टुडे. That's good, that's good. So यही मेरा कहना था कि जब हम बहुत सक्सेसफुल होते हैं, and see why I am focusing in my all the videos that be you, transparent from to yourself, कि तुम क्या हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए. Whatever you are doing, know the reason why you are doing and what
you are means every day you should understand and you have an appointment with yourself, 5 से 7 मिनट 20 मिनट जो भी आपको लगता है वो आप अपने साथ बिताएं ताकि आपको पता चले, क्योंकि मैं आपको बता, आई एम नॉट टेलिंग कि फेक कमेंट्स, बट देयर आर सम कमेंट्स बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन एज यू शेयर। Yeah. तो वहां पे कभी कभी क्या होता है कि इफ योर मेंटल स्टेटस इज नॉट बैलेंस, तो हमारी जो कहते हैं ना कि सफलता उसके सिर पे चढ़ गई, बिल्कुल, हाँ। तो उसके बाद you stop learning, and Right. here I am telling you criticism is also your good friend, क्योंकि कई बार कोई कहता है अच्छा क्या है, ये तो बेकार है, ये तो ऐसे ही है, because I want to share my experience, like last 5 years back when I was got selected for some seminar, तो जाके यहाँ तो आप लाइव होके 500 लोग भी हैं, तो मीन्स अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप ऑनलाइन तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन स्टेज पे जाके अगर 100 लोगों को आप देख रहे हो एंड दे वेयर ऑल एमिनेंट पर्सनैलिटी, एक प्रोफेसर लेक्चरर, और वहां पे आपको बोलना होता है, तो you feel nervous sometimes, और वहां पे जब उनकी नजरें आपको देखती हैं कि एज वाइज यू आर नॉट लुक सो एज्ड, कि आप वहां पे जाके कुछ मोटिवेशनल या कुछ ऐसा टॉक करने वाले हो, और वो लोग जो सुनने वाले हो आपसे डबल और ट्रिपल एज के हैं, so on that moment there are many comments before the lecture came that okay this and what we are here, but after your session when people comment okay that's wow, क्योंकि आपकी एक एज होती है, आपका एक काम होता है, क्योंकि जैसे आप भी सिंगर हैं, वहां जब आप जाते हैं आप अपने से ज्यादा एज लोगों को देखते हो, ज्यादा एक्सपीरियंस आई कैन से, तो एक अंदर से घबराहट सी होती है, लेकिन जब आप अपना बेस्ट शॉट देते हैं उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट आती है दैट मेक्स यू fearless. Right, absolutely. Yeah, I completely relate to what you said. मेरे साथ भी similar ही होता है, हाँ. Yeah. So, मैं अपना बताती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा खुद की स्टोरी इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट है, बहुत कमा रही होगी, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत एक्सपीरियंस है, बट हियर आई एम टेलिंग यू कि मैंने उस समय जब मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते थे, क्रिटिसिज्म मिलते थे, तो मैं भी सोचती थी कि अच्छा मैं कैसे आई यूज टू वेयर साड़ी एंड लुक ओल्ड, कि नहीं मुझे ऐसा दिखना है, लुक मोर मैच्योर, यूजुअली what we are doing that if you are wearing former, that is shirts and trouser, or maybe something like that, so you are not focusing your skill, your knowledge, rather than you're distracting. So don't distract, because if your skill has part, your skills will speak, that your success will make sound, so you need not to be worried. So because of this, because you're also so young and in this age you're singing so maturity and आपका जो इतना अच्छा सिंगिंग है, तो उसको लोग कई बार उसको क्रिटिसाइज की तरह भी बोलते हैं कि अच्छा तुम ऐसे गा रहे हो, because they don't know the knowledge, they don't know, they don't have the music. जैसे अगर आपने बोला कि वो जो जरा जरा है उसकी जो भी गलतियां हैं वो वही पकड़ सकते हैं, हम नहीं पकड़ सकते हैं, Right. So this is all about, so we should take criticism also as a positive manner and appreciation also in a balanced way, right? Yeah, I agree completely. हाँ, वही होता है. Yeah. So should we take a few questions? I think कुछ questions sure. One minute, I'm just. Yeah, एक question I read. I'm just scrolling up. I started playing piano the question is from Isha. I started playing piano a few months back and started posting on Instagram, and I have a YouTube channel too. But in YouTube, I am not getting good views. Can you please tell me what I am supposed to do? So Isha, अगर recently ही start किया है तो just understand that this will take time. ये immediately नहीं होता है. It will take time, and try and make piano covers of songs that others are not covering. या तो कुछ maybe cover things that other people are not doing, and that is how you will stand out. So try these things. I hope it works for you. Or I think I'll just say hi, Amit Pandit, hi, Junaid, hi, Jani, hi, Sona, hi, Bhavya, hi. Yeah.
I think we can continue. Yes. Hello everyone. You can ask your question regarding music, your YouTube channel and everything, singing. आप पूछ सकते हैं अपना सवाल. So, करण, एक और बात है कि जब आपने ये स्टार्ट किया और आज आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, so do you have your students or your fan following or someone who makes you inspire कि कुछ ऐसी किस्सा, कुछ ऐसी वारदात हुई हो जो आपके लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन उससे आपने बहुत सीखा भी हो कि योर फर्स्ट परफॉर्मेंस और किस तरह से आपने उस चीज को किस वे में लिया, जैसे आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे. So how you say, I think, like I said, जितना struggle phase देखा, that was with YouTube live में, because since childhood I've been performing on stage, so live में I was always confident, but YouTube में I saw the struggle, and that's when I realized कि struggle is your friend, so just accept it as a part of the process, and आप कितने भी successful हो जाओ, struggle never ends, so the struggle just keeps changing, and it's fine. Everyone is going through struggle, so that is what I learned. But if you ask about my inspiration, कभी भी हम लोग सबके actually life के problems काफी छोटे होते हैं, but जब भी मुझे लगता है कि अरे यार मेरी life में क्या हो गया, there's this one rapper, he's 17 years old, and his name is Sparsh Shah, and he has this brittle bone condition where even a hard handshake will break his bone, and probably in 17 years he's had over 140 surgeries. So almost every few weeks he has to get a surgery done, because that is his condition. And despite that, he has raised over $1 million for different charities. He's released over 50 original songs. तो कुछ भी मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, then I think of Sparsh and I'm like, I'm facing nothing compared to what he is going through, and that's how I motivate myself. That's amazing. That's amazing. वही मैं बोलती हूँ कि आपको जब भी लगे कि आपकी लाइफ बहुत ही बेकार है, your life is hell, then think about yourself and think about others. वहां पे आप करो कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन करना है, क्योंकि आई एम ऑल्सो डीलिंग विद स्पेशल नीड चिल्ड्रन, आई एम स्पेशल एजुकेटर ऑल्सो. तो वहां पे मैं देखती हूँ कि जो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी होते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनको हमने नाम तो बड़े आराम से दे दिया कि ये सारे टर्म्स हैं, लेकिन उनके साथ जो चल रहा होता है, किस तरह से उनको कलर का पता नहीं होता है, जो ब्लाइंड होते हैं या पार्शियली ब्लाइंड होते हैं. मैं उनके साथ जब बैठती हूँ और देखती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ, ये लोग बहुत सच्चे होते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं. वो दूर से ही आपको देखेंगे तो आपको हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि उनमें इम्प्योरिटी नहीं होती है. दे आर वेरी प्योर, सो अभी जो आपने स्पर्श की बात की, इट्स अ रियली इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन कि जब भी आप स्टक होते हैं अपनी लाइफ में, तो आप देखिए कि आपके पास क्या क्या है, और जो और आगे बढ़ रहा है उसके पास क्या क्या नहीं है, और उन कमियों के साथ वो आगे बढ़ रहा है. मैं कहती हूँ कि अगर आपके ये दोनों हाथ बांध दिए जाए तो किस तरह से आप अपने डेली का काम करोगे. सो पीपल सेड नो, आई कांट इमेजिन, और मैं आपको बताती हूँ, आपको भी पता होगा, आई विल नॉट टेल द नेम, कि जिनके हाथ नहीं है, लिम्स नहीं है, वो एक इतने अच्छे तरह से ड्राइव भी कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं. ऐसे कितने लोगों को मैं जानती हूँ, और ये बहुत इंस्पायरिंग है करण, मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब ये बहुत टच होता है, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ हो के भी ना, जैसे आपने बोला कि अभी एक क्वेश्चन था कि यूट्यूब पे हमारे ये नहीं आ रहा, तो हम उसके लिए सैड हो जाते हैं कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं, हमारे इस तरह से मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, हम खुद जज करते हैं अपने आप को कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, हमें इतनी सफलता नहीं मिल रही है. सो डोंट जज योरसेल्फ कि आपने कितनी मेहनत की, क्योंकि काम करना आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. सो start doing and keep doing. आई थिंक भगवत गीता में ये कहते हैं ना कि कर्म कर, इच्छा फल की चिंता मत कर. बिल्कुल. कर्म, and I also share many times कि कर्मा इज इन योर हैंड एंड बिलीव इन योर कर्मा. कभी भी जानबूझ के आप किसी को हार्म ना करें, और अपने काम पे ध्यान दें. फोकस ऑन योर स्किल्स, योर कर्मा, बिकॉज कर्मा बाउंस बैक ऑलवेज. And the situation that we are in is destiny. Jैसे I'm born in this family, या ये मेरा face है, I can't do anything about it, So this is destiny. The situation I am in is my destiny, but what I do with it,
how I react to my situation is in my control. So we should focus on Exactly. that. Yeah. या बहुत ही सिंपल है हमारी जिंदगी, करण हम उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इतनी अच्छी लाइफ होती है, आपके हाथ में कई सारी चीजें हैं, ठीक है, और आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर हम सोशल मीडिया की बात लें तो हम कहते हैं कि हमारा 10,000, बस 10,000 ही व्यू आया। तुम ये देखो, तुम्हारे 10,000 आए, ट्राई So many फॉर people would मिलियन, want that. वो नहीं या सोचते हम. तुम ट्राई करो। और सेकेंडली, कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, उसका अंत नहीं है। आप ये काउंट करो कि क्या है। सो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड ग्रो ग्रेटिट्यूड कि यू हैव, एज यू सेड, आई एम सो इम्प्रेस्ड दैट यू सेड यू हैव ब्यूटीफुल फैमिली। दैट्स वेरी सिंपल। आप बोलोगे ठीक है, ये तो परिवार है, ये तो मैंने चूज नहीं किया, ये तो मुझे विरासत में मिली है। बट विरासत में भी किसको मिलती है इतनी अच्छी फैमिली? मैं आपको बताती हूँ, कितने लोग होते हैं जो बावजूद अच्छा गाते हैं, अच्छी आवाज गॉड गिफ्ट होती है, बट पेरेंट्स के साथ उनकी इतनी स्ट्रगल चलती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। वो बच्चा ना इधर का रहता है ना उधर का, क्योंकि उसका पढ़ने में भी ध्यान नहीं लगता है और वो फिर म्यूजिक भी नहीं कर पाता, और परिवार में क्लेश अलग होता है। सो इट्स अ ब्लेसिंग दैट यू हैव ब्यूटीफुल फैमिली एंड यू रियलाइज एंड यू सेड दिस। We are not realizing what we have. हमें हमेशा रहते हैं कि नहीं, हमारे पास क्या नहीं है, हम उसके पीछे भागते हैं। Actually, especially for artists, बहुत फैमिली सपोर्ट नहीं ही करती है, एंड इट्स रियली सैड, क्योंकि अगर आपका वो पैशन है, आपका वो कॉलिंग है, एंड इफ यू डोंट गेट टू परस्यू दैट, देन जीके भी यू विल फील कि समथिंग इज मिसिंग। तो वो सपोर्ट एक फैमिली को देना ही चाहिए, बिकॉज फैमिली सपोर्ट नहीं देगी तो कौन देगा? Absolutely. So that is, I don't take it for granted that I have a family that supports, my passion. But वही है, I would, suggest that अगर आप लोग जो देख रहे हैं, आप भी कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में पैशनेट है, अपने फैमिली को समझाइए, कन्विंस कीजिए, and you should try and pursue your passion. Yeah, absolutely. क्योंकि मैं बताऊं करण, मैं जो भी बोलती हूँ वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, क्योंकि I am very much touched with the person who is suffering. कुछ भी उसके साथ हो रहा हो तो मुझे शुरू से लगता है, बट वाई पीपल लिसन यू? अगर कोई आपको सुने, उसके लिए यू नीड योर डिग्री, यू नीड योर स्किल, जैसे म्यूजिक में है तो आप सीखते हो, रियाज करते हो, ऐसे हमारे लिए भी हमें सर्टिफाइड होना जरूरी है कि इफ आई एम टेलिंग दैट आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ काउंसलर, सो आई नीड टू बी सर्टिफिकेशन। काम करने के लिए किसी पोस्ट की जरूरत नहीं होती है, आप किसी की भी हेल्प करो, बिंदास करो, लेकिन अगर आपको एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए, यू नीड टू बी सर्टिफाइड। सो आई वॉज वेरी टच्ड अबाउट द पेन ऑफ द पीपल दैट स्पेशली वुमन, गर्ल एंड कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो सफरर होते हैं, और लोग बिलीव नहीं करते कि अच्छा लड़के के साथ भी ऐसा हो सकता है क्या। ये बहुत ही आयरोनी है हमारी सोसाइटी की, कि अगर कोई लड़का आके बोलता है कि वो इस चीज से गुजर रहा है तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो देयर आर मेनी सिचुएशंस, एक्सपीरियंस which makes me psychologist and which makes me certified psychologist, because I want to help people, so everything like your music, my this mental health awareness, everything, why I am doing, because I want to help people and I want to make speak, speak out whatever you are suffering, you are struggling with, speak out, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन है, और हर वो असफलता वो एक पन्ना है दोस्तों, जिंदगी की तो अभी पूरी किताब बाकी है, you should understand. Profession है of counselors, I genuinely salute all counselors because it's such a difficult job to do. आप इतने लोगों के through constantly you're listening to problems of people, and उसमें खुद को motivated रखना, खुद को happy रखना is so difficult. And ऊपर से इंडिया में there's still a taboo कि लोग शर्माते हैं कि अरे काउंसलर के पास चला गया, इसके पास चला गया, so what? अगर आप डॉक्टर के पास गए, वैसे काउंसलर के पास गए for your mind. तो वो शर्म, that taboo has to go. उनको बस ये लगता है कि अच्छा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, यू शुड कांटेक्ट विद प्रोफेशनल हु काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट। क्यों? द स्टिग्मा इज दैट तू पागल है, तू काउंसलर के पास जाता है, क्यों जाता है, क्या हो गया, सब सही है, बिकॉज ऑफ दैट आई नेम my that clinic, that is insane wellness। ठीक है, अगर आप पागल कहते हो तो पागल ही सही, हम पागलों का ही तो इलाज करते हैं, लेकिन आप एक बार एक्सेप्ट तो करो प्रॉब्लम है क्या,
हाँ. You know, if you are feeling that you are insane, that is okay, because you have to be accept कि आप क्या हो. You know, this is what people are thinking. So apart from all this, I'm so happy. So जाते जाते एक अच्छा सा आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपको बहुत मुश्किल हुई, लेकिन वो गाना बनने के बाद बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिला. So there's a song called दिल दे दिया है, मस्ती मूवी का है, तो वो Okay. सुनाता हूँ आप सबको. Before I Sure. sing, I'll just say hi Som Gupta, Yes. and अभी I think scroll up नहीं हो रहा है, but hi everyone, thank you so much for joining our live today, and ये song आप सबके लिए. आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना, आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम. Thank you. Wow, it's amazing. Okay. Wonderful. Thank you everyone. मजा आ गया, Eba मजा आ and गया. Som Gupta, everyone, thank you so much for your beautiful comments and the hearts. So मैं बिल्कुल नहीं मिस करूंगी. करण, you are great, awesome, wonderful singer. I'm sorry मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स, हार्ट और बेस्ट विशेस हैं करण के लिए. आई एम सो हैप्पी एंड इवन आई एम ऑल्सो विशिंग अ बेस्ट विशेस. और मेरी बेस्ट विशेस ये है कि अगली बार जब हम लाइव शो करें तो आपके पास एक बॉलीवुड का प्रोजेक्ट हो और हम कह सकें अरे ये तो करण है, इसके साथ तो हमने लाइव शो की थी. यू नो, सो आई वाज लाइक कि आपकी आवाज इतनी अच्छी है, लेकिन हम वही कहते हैं कि आवाज के साथ साथ आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर आगे जाएंगे. एंड माय बेस्ट विशेस इज with you, Karan. God bless you and thank you. Thank you so much for inviting me. I had a wonderful time and I love talking to you and my supporters. Thank you so much again for joining in. And I look forward to our next live session. Thank you so much. God Take bless care. you, Karan. And Thank you. your smile suits on your face. Keep smiling always. You too. Bye. Bye everyone. Thank you. Bye. Take care. So, ये थे करण चुग. जरूर आप जाएं इनके YouTube को, देखें, सुने और सब्सक्राइब करना ना भूलें. And he is a rising star and amazing singer. So, this is your Nishi psychologist. हर बार की तरह इस बार भी हम आपसे एक ही बात कहेंगे, अपने आप को समय दें, अपने आप को समझें, और अगर कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, मैं हूं ना, आपकी निशी साइकोलॉजिस्ट, हर पल आपके सवालों का जवाब लेके. और हाँ, your smile suits on your face. Keep smiling.